Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiv Shakti Study Mind. Today we are going to discuss about a very important topic of class 11th chemistry chapter 1 law of definite proportion. It is very important for the study of the chapter. The name of the chapter is some basic concepts of chemistry. We are going to discuss about the definition of the law of definite proportion, who proposed it, and what is the use of law of definite proportion in chemistry, and some examples of the law. We will discuss it in both the languages, as our all other videos are in. First part will be for the English medium students of NCERT pattern syllabus, and second half will be for the Hindi medium students of NCERT pattern. Either they are from any board of all over India who follow NCERT books or NCERT pattern. Let's begin. First half will be for the English medium students. So, a famous French chemist named Joseph Louis Proust proposed the law of definite proportion in 1797, which states, what it states, chemical compounds, constituents, elements are always present in a fixed ratio by mass. Chemical compounds, constituent elements are always present in a fixed ratio by mass, and that this ratio is not affected by the compound's origin or manufacturing process. This is the law of definite proportion. First, who proposed the law of definite proportion? Joseph Louis Proust in 1797. A famous French chemist proposed the law of definite proportion, which states, what the statement is, chemical compounds, constituents, elements. Means when we are making a chemical compound, all the elements which are involved in making the compound, they are always present in a fixed ratio by mass, and that this ratio is not affected by the compound's origin or manufacturing process. If we are making a chemical compound, their ratio is fixed by mass, and they are performed by any process. It does not matter that they are manufactured by which process. If we are manufacturing a chemical compound, the ratio of their masses should be fixed, or we can say should remain constant. This law is also known as Proust's law, or the law of constant composition. The law of definite proportion is also known as law of Proust's law or law of constant composition. Why it is said as Proust's law? Because Proust proposed it in 1797, and their compositions are always remains constant. So this law is also known as law of constant composition. Clear? If you have any doubt, let's carry it with your example. Hydrogen and oxygen makes water molecule. Water. The proportion of hydrogen and oxygen always remains fixed. Their mass ratio is always fixed. That this proportion should be for hydrogen, and this proportion should be for oxygen. It always remains fixed. This is known as the law of definite proportion. Clear? आइए अब हम अपने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इसी लॉ को हिंदी में डिफाइन करते हैं. आशा है आपको इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम में जो हमने डेफिनेशन को
एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई त्रुटि लगती है या कोई उसमें आपको चीजें नहीं समझ में आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम अलग से आपको वीडियो के अलावा भी समझाने का प्रयास करेंगे। आइए देख लेते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए फ्रेंच केमिस्ट थे जोसेफ लुइस प्राउस्ट, जिन्होंने सन 1797 में इस नियम का प्रतिपादन किया। हिंदी में इस नियम को कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम। हिंदी में इस नियम को कहा जाता है निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया? फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ लुइस प्राउस्ट, या आप इन्हें सिर्फ प्राउस्ट भी कह सकते हो। जिसके अनुसार कहा गया क्या कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक चाहे वो किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, चाहे आप उसको जैसे भी बना रहे हो, अगर आप कोई रासायनिक यौगिक बना रहे हैं तो जिस भी विधि से या जिस भी प्रक्रिया के द्वारा उस रासायनिक यौगिक का निर्माण आप कर रहे हो, उसके तत्वों का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में नियत रहता है। उसमें जिन तत्वों का हम प्रयोग कर रहे हैं उनका जो द्रव्यमान होता है वो निश्चित अनुपात में नियत रहता है। उनका जो अनुपात होता है या रेशियो जिसे कहते हैं अनुपात, वो हमेशा नियत रहता है। उसके द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा नियत रहता है। अर्थात एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भारानुपात में संयुक्त रहते हैं। मतलब उनके जो भार का अनुपात होता है वो निश्चित होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर जल बनाते हैं, तो हाइड्रोजन कितनी भार होगा और ऑक्सीजन का कितना भार होगा, ये पहले से नियत रहता है। चाहे आप जिस विधि से आप जल बना रहे हो, चाहे प्रयोगशाला में बना रहे हो, चाहे जहां बना रहे हो, जब भी जल एक यौगिक है, जल यौगिक जब बनाएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किस मात्रा में लेना है, ये आप चाहे जिस जगह पे चाहे जैसे इसको आप बना रहे हो, चाहे जैसे जिस प्रकार से इसका निर्माण कर रहे हो, चाहे जहां हो रहा है, ये निश्चित होता है कि इस अनुपात में हाइड्रोजन रहेगा और इस अनुपात में ऑक्सीजन रहेगा। तो ये जो उसके भार का अनुपात जो निश्चित रहता है या जो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं? निश्चित अनुपात का नियम कहा जाता है। इसके अलावा इस नियम को हम प्राउस्ट का नियम और निश्चित संरक्षण का नियम भी कहते हैं। निश्चित संरक्षण का नियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका संरक्षण या जो उसकी मात्रा होती है वो नियत रहती है। आशा है आपको निश्चित अनुपात का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं या हमसे कमेंट बॉक्स में अलग से कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह हमारा आज का वीडियो था। आपको हमारा समझाने का तरीका कैसा लग रहा है, हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे आपके तरह आपके और भी दोस्त जो हैं उनको इसका लाभ प्राप्त हो सके, वो भी अच्छे से और सरल तरीके से इन नियमों को समझ सके। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, या आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें, जिससे वो भी अधिक से अधिक मात्रा में इस जानकारी से लाभान्वित हो सके, उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।